See, in the lives of every one of us, every day we face so many problems and troubles in our lives. देखिए, हम सब के जीवन में प्रतिदिन हम बहुत सारी समस्याओं और मुश्किलों का सामना करते हैं। Especially my sisters, you will start crying. विशेषकर जो मेरी बहनें हैं वो रोना शुरू कर देती हैं। This has happened in my life. मेरे साथ ऐसा हुआ है, What shall I do? अब मैं क्या करूं? What shall I do? अब मैं क्या करूं? They'll start crying. वो रोना शुरू कर देती हैं। They are not able to bear everything. वो इस सब को सहन नहीं कर पाती। But young people लेकिन नौजवानों and the old people also, और जो बड़े हैं, put your complete trust upon the Lord. अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखें। My precious brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, if you read the word of God, Bible, यदि आप परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ें, you will come across many truths in the Bible. तो बाइबल में आप बहुत से सत्यों को देखेंगे। When you follow these truths carefully in your life, और जब आप ध्यानपूर्वक इन सत्यों का पालन अपने जीवन में करेंगे, easily you can walk with the Lord and talk with the Lord and you can have a communion with the तो Lord. आप आसानी से परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं, उसके साथ संगति कर सकते हैं। And today also we are going to speak about the truth which is in the Bible. और आज भी हम बाइबल में पाए जाने वाले एक सत्य के बारे में बात करेंगे। If we read Proverbs 3, 5 and 6. नीति वचन 3 उसका 5 और 6 पद। Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। So my precious brothers and sisters, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और we बहनों, have to read the word of God daily to follow the ways of the Lord. हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलने के लिए प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। And today we see that we have to trust in the Lord. और आज हम देखेंगे कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। Trust in the Lord with all your heart. अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना And lean not on your own understanding. और अपनी समझ का सहारा ना लेना। And the Lord Jesus Christ himself will lead you beautifully. और पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह सुंदर रीति से आपकी अगुवाई I करेंगे। don't know how many of you can understand that and how many of you are putting your trust upon God with all your heart and receiving God's blessings. मैं नहीं जानती कि आप में से कितने इस बात को समझते हैं और पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसकी आशीषों को पा We रहे are हैं। going to see some examples from the Word of God. Those who have followed God, putting all the trust upon Him. हम बाइबल में से ऐसे कुछ लोगों के उदाहरण देखेंगे जिन्होंने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा और उसके पीछे चले। David was a man of God. दाऊद परमेश्वर का कितना महान जन था। From his childhood onwards, he sought God diligently. अपने बचपन से ही वो हृदय से परमेश्वर का खोजी हुआ। David says in Psalm 62 verses 6 and 7, भजन संहिता 62 उसके 6 और 7 पद में दाऊद कहता है, he put his complete trust upon God. उसने अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखा। In many places he says, God is my और rock. कई जगह पर वो कहता है, परमेश्वर मेरी चट्टान है, He is my rock. परमेश्वर मेरी चट्टान है। He is my only rock and salvation. केवल परमेश्वर ही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है And he is my defense. और वही मेरी ढाल है। That's why I will never be moved. इसलिए मैं कभी ना डिगूंगा। To receive this blessing, what did he do? इस आशीष को पाने के लिए उसने क्या किया? If you read Psalm 16 verse 8, यदि आप भजन संहिता 16 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ें, he says, I always look to the वो Lord. कहता है, मैं हमेशा परमेश्वर की ओर देखता हूँ। I am keeping the Lord always before me. मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। He is at my right hand. वो मेरे दाहिने हाथ है That's why I will never be moved. और इसलिए मैं कभी ना डिगूंगा। See, in the lives
of every one of us, every day we face so many problems and troubles in our lives. देखिए, हम सब के जीवन में प्रतिदिन हम बहुत सारी समस्याओं और मुश्किलों का सामना करते हैं। Especially my sisters, you will start crying. विशेषकर जो मेरी बहनें हैं वो रोना शुरू कर देती हैं। This has happened in my life. मेरे साथ ऐसा हुआ है, What shall I do? अब मैं क्या करूं? What shall I do? अब मैं क्या करूं? They'll start crying. वो रोना शुरू कर देती हैं। They are not able to bear everything. वो इस सब को सहन नहीं कर पाती। But do you know what David did? लेकिन जानते हैं दाऊद ने क्या किया? He had God before him always. उसने निरंतर परमेश्वर को अपने सम्मुख That's why he रखा, was looking into him. इसीलिए वो हमेशा परमेश्वर की ओर देखता था। Nothing could move him. कोई भी बात उसे हिला नहीं सकी। He was very happy and all the time singing songs for the glory वो of बहुत God. खुश रहता था और हर समय परमेश्वर की महिमा के गीत गाता था। In his life, a terrible thing happened once. उसके जीवन में एक बार बहुत बुरी घटना घटी। Once he was taking food for his brothers. एक बार क्या हुआ कि वो अपने भाइयों के लिए खाना लेकर गया। Israelites were fighting with Philistines. इस्राएली फिलिस्तियों से युद्ध कर रहे थे And his brothers were there to fight with the other Philistines. और उसके भाई फिलिस्तियों से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में थे। So the father said, take food for your brother. और दाऊद के पिता ने उससे कहा कि तू अपने भाइयों के लिए जो युद्ध के मैदान में है भोजन लेकर जा। David was a young boy. दाऊद लड़का ही था When he saw the crowd, और जब उसने उस भीड़ को देखा, he was watching everything. वो वहां सब कुछ देख रहा था। And there came a giant, a tall man, Goliath. और वहां पर उसने देखा कि एक दानव सामने आया जिसका नाम गोलियत था। He was making fun of the God of Israel. और वो सामने आकर इस्राएल के परमेश्वर को ठट्ठा कर रहा था। He defied the armies of the Israel army. और इस्राएल की जो सेना थी वो उसका मजाक उड़ा रहा था। Even though David was a young boy, यद्यपि उस समय दाऊद एक छोटा लड़का ही था, within his heart he said, लेकिन अपने हृदय में उसने कहा, how can he speak against my God? यह व्यक्ति मेरे परमेश्वर के विरुद्ध कैसे बोल सकता है? Against the God of Israel. इस्राएल के परमेश्वर के विरुद्ध कैसे बोल सकता है? How can he speak like that? वो ऐसा कैसे बोल सकता है? Oh, he said, let me fight with him. और उसने कहा, मैं जाकर उससे लड़ूंगा। He went and told King Saul, और उसने जाकर राजा शाऊल से कहा, allow me to fight with this man. मुझे इस व्यक्ति से लड़ने के लिए जाने दें, Easily I will win him over. मैं आसानी से उसको जीत लूंगा। You know what King Saul said? और जानते हैं राजा शाऊल ने क्या कहा? If you read 1 Samuel chapter 17 verses 36 and 37, यदि आप पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 36 और 37 पद को पढ़ें, King Saul said, you are a young man. राजा शाऊल ने कहा, तू तो एक लड़का है, But this Goliath is a man, he is a giant. और यह जो व्यक्ति गोलियत है वो तो एक योद्धा है, You cannot fight with him. तू उससे नहीं लड़ सकता। But do you know what David said? पर जानते हैं दाऊद ने क्या कहा? Putting all his trust upon him, अपना पूरा भरोसा प्रभु पर रखते he हुए said, उसने कहा, once while I was keeping my father's sheep, एक बार मैं अपने पिता की भेड़ों की रखवाली कर रहा था, there came a lion और एक शेर आया and a bear. और भालू आया। He was able to save himself from the paws of the lion and the bear. उसने कहा कि उसने शेर और भालू दोनों को हराकर अपने आप को बचाया था। Now the same God is with me. अब वही परमेश्वर मेरे साथ है। I am putting all my trust upon him. मैं अपना पूरा भरोसा उस पर रखता हूँ। He is with me. वो मेरे साथ है। He is with me at all times. हर समय वो मेरे साथ है। Young people, you may say, oh, I don't have anybody to love me. नौजवानों, शायद आप कहते हैं कि कोई मुझसे प्रेम करने वाला नहीं है। Nobody is there in my life. मेरे जीवन में कोई प्रेम करने वाला नहीं But है। young people लेकिन नौजवानों and the old people also, और जो बड़े हैं, put your complete trust upon the Lord. अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर Whatever may रखें। be the situation, आपके जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, when God is with you, जब परमेश्वर आपके साथ होगा, who can be against you? तो कौन आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है? Who can be against you? कौन आपके विरुद्ध हो That's सकता a है? beautiful song एक बहुत सुंदर गीत है which says, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, trust in the Lord and don't despair. परमेश्वर पर भरोसा रखो और निराश ना हो। Trust in the Lord and don't despair. He is a friend so true. No matter what your troubles are, Jesus will see you through.
Sing when the day is bright. Sing through the darkest night. Every day, all the way. Let us sing, sing, sing. Beautiful song, isn't it? Very meaningful. यह बहुत सुंदर और अर्थपूर्ण गीत है ना? Don't despair. निराश ना हो, Don't be discouraged. निराश ना हो। How can I meet that wretched person? मैं उस बुरे व्यक्ति से कैसे मिलूंगा? Today I have an interview. आज मुझे इंटरव्यू देने जाना है, I have to get the job. मुझे यह नौकरी हासिल करनी है। How to face the interview? मैं इंटरव्यू कैसे दे पाऊंगा? How to face the examination? मैं परीक्षा कैसे दे पाऊंगा? How to face this situation? मैं इस स्थिति का सामना You may कैसे be करूंगा? worried. शायद आप चिंता You में may be हैं, worried. शायद आप चिंता में But हैं, this song says, लेकिन यह गीत कहता don't है despair. निराश ना हो, Don't despair. निराश ना हो। Trust in the Lord. प्रभु पर भरोसा No रखो। matter what your troubles are. आपकी मुश्किलें चाहे कैसी भी हैं, Jesus, if He is with you, यदि यीशु आपके साथ है He will see you through. तो वही आपको इनमें से निकाल कर ले जाएगा। So, इसलिए when the day is bright जब दिन उजाला है and through the darkest night, और अंधकार से भरी रात में भी, every day, प्रतिदिन at all circumstances, हर परिस्थिति में, all the way, अंत तक let us sing, sing and sing. आइए गाते रहें और गाते रहें। David was ready to face the giant सो Goliath. दाऊद उस योद्धा, उस दानव गोलियत का सामना करने के लिए तैयार था। He had only stones in his hand. और दाऊद के हाथों में केवल कुछ पत्थर थे। And what happened? और क्या हुआ? Just a stone. केवल एक पत्थर, Just a stone. केवल एक पत्थर। That Goliath thought, he's a young man. गोलियत ने सोचा कि यह तो लड़का ही है Easily I can kill him. और मैं बड़ी आसानी से इसको मार सकता हूँ, Easily I can kill him. आराम से मैं इसको मार सकता हूँ। When you put your trust upon God, लेकिन जब आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं what will happen? तो क्या होगा? Hallelujah. हालेलुया। The Lord will come before you to fight with you. परमेश्वर आपके साथ लड़ने के लिए आपके आगे आगे चलेगा। If you read Psalm 23 verse 4, यदि आप भजन संहिता 23 अध्याय के 4 पद को पढ़ें there we see like this. तो यहाँ हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, I'll fear no evil. मैं किसी बुराई से ना डरूंगा, I'll fear no evil. मैं किसी बुराई से ना डरूंगा। The Lord is with me. परमेश्वर मेरे साथ है And He is in me. और वो मेरे अंदर है, He will fight for me. वही मेरे लिए लड़ेगा। When you have such problem hereafter, जब आज के बाद आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या आए put your complete trust upon God. तो अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखें, You will fear no evil. तो आपको किसी बुराई से डर ना लगेगा, Because the Lord will be with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होगा। David writes, दाऊद लिखता है, Your rod and your staff, they comfort me. तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। Yes, he was able to kill the giant instead of giant killing this little boy David. और क्या हुआ कि वो दानव इस छोटे से लड़के दाऊद को मार पाता, इसके बजाय दाऊद ने उसे मार डाला। In your life also you may be facing such हो problems. सकता है आप भी अपने जीवन में ऐसी ही समस्याओं का सामना कर रहे The हो problem may be a big one. और हो सकता है वो समस्या बहुत बड़ी हो। Even today you might have come with so many problems in your life. हो सकता है आज भी आप अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं के साथ यहाँ आए हैं। When we got married in the year 1959, जब 1959 में मेरा विवाह हुआ 10 years passed by without any problem. तो 10 साल बिना किसी समस्या के बीत गए। 1969 came. जब 1969 आया, Suddenly the doctor said, अचानक डॉक्टरों ने कहा your husband is going to die. आपके पति की मृत्यु होने वाली है, He's having the bronchitis problem. उनको ब्रोंकाइटिस की समस्या है Both lungs are eaten up. और उनके दोनों फेफड़े बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, Any moment he will die. किसी भी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। And when I heard that, और जब मैंने ये सुना I never knew what to do. मुझे समझ नहीं आया क्या My करूं। husband also said, और मेरे पति ने भी मुझसे कहा, yes, I am going to die. हाँ मेरी मृत्यु हो जाएगी, But the Lord who was with me and leading me so far will lead you also. लेकिन जो परमेश्वर अब तक मेरे साथ रहा और मुझे चलाता रहा वो तुम्हें भी संभालेगा। I never knew what to do. मैं नहीं जानती थी कि क्या करूं। I just went into the room, मैं बस कमरे में गई, knelt down before God, परमेश्वर के सामने घुटने टेके cried out before Him. और उसको पुकारा, Father, पिता you are my only trust. केवल तू ही मेरा भरोसा है, You are my only hope. केवल तू ही मेरी आशा है।
I don't know what to do. मैं नहीं जानती क्या कर। Save my husband's life. मेरे पति के जीवन को बचा ले, Heal him. उसे चंगा कर दे, Do a miracle. एक चमत्कार कर दे। We have a God who will speak to you. देखिए, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपसे बात करता है। Whenever I go through problem, जब भी मुझे कोई समस्या आती है when I wait at the feet of God, और जब मैं परमेश्वर के चरणों में प्रतीक्षा करती हूँ, He'll come and talk to me. तो वो आकर मुझसे बात करता है। And He talked to me that day और उस also. दिन भी उसने मुझसे बात He की। said, उसने कहा, your husband will not die. तेरे पति की मृत्यु नहीं Your होगी, husband will live. तेरा पति जिएगा। Doctors may say so many things, डॉक्टर चाहे कुछ भी कहते रहें, but he will live. लेकिन वो जिएगा। And in the days to come or in the months to come, और आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में I will open the open air. मैं खुली सभाओं के लिए द्वार खोलूंगा। Till then he was preaching in the churches only. उस समय तक मेरे पति केवल कलीसियाओं में जाकर ही प्रचार किया करते थे। He said, I am going to open the open air. परमेश्वर ने कहा, मैं खुली सभाओं के लिए द्वार खोलूंगा। Your husband is going to preach in that open air meetings. और तेरा पति उन खुली सभाओं में जाकर प्रचार करेगा। Yes, the Lord spoke to me. हाँ, प्रभु ने मुझसे बात की। You look to God. That's all you have to do. आप प्रभु की ओर देखें, बस आपको इतना ही When करना you are है। going through trouble, जब आप मुश्किलों में से गुजर रहे हों, don't put your trust upon any man or तो woman. अपना भरोसा किसी आदमी या किसी औरत पर न रखें। Go to your prayer तो room. प्रार्थना के कमरे में जाएं। If you don't have a prayer room, यदि आपके पास प्रार्थना का कमरा नहीं go है, to a corner of your house तो अपने घर के किसी कोने में जाएं and look to the Lord और प्रभु की ओर देखें and tell Him your problem. और अपनी समस्या उसे बताएं। Father, पिता, I believe only in you, O Father. मैं केवल आप पर विश्वास रखता हूँ I पिता, am putting my trust upon you only. और मैं अपना भरोसा केवल आप पर रखता हूँ। Help me, Father. मेरी मदद करें पिता। Surely He'll help you. और निश्चय वो आपकी मदद करेगा। You can hear His voice आप उसकी आवाज को सुन पाएंगे and He will talk to और वो you. आपसे बात करेगा। Yes, my brothers and sisters. हाँ मेरे भाइयों और बहनों, And you can walk with Him and talk with और Him. आप उसके साथ चल सकते हैं, उससे बात कर If सकते you हैं, have your trust upon Him. यदि आप अपना भरोसा उस पर रखें। यीशु बुलाता है परिवार आशीष योजना। इसमें जुड़ने वाले सभी के लिए 24 घंटे प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने के साथ आप करोड़ों लोगों के आंसुओं को पहुंचने का कारण बनने से आपको जरूर आशीष मिलेगा। www.jesuscalls.org और यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन में आज ही संपर्क करें। यीशु बुलाता है परिवार आशीष योजना में हम आपके परिवार के आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं।